जहां मेडिकल स्टाफ को इनकी खिदमत के लिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कबूल किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इनसे बदसलूकी भी कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया रानीगंज के बारवाड़ी हॉस्पिटल में पेश आया। इल्जाम है कि गुज़िश्ता 27 अक्टूबर को हॉस्पिटल के स्टाफ से पेशेंट पार्टी ने हाथापाई की। इस सिलसिले में मकामी एमएलए रोनू दत्ता ने मैनेजमेंट पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। वहीं हमारे नुमाइंदे ने जब हॉस्पिटल के जिम्मेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जानिब से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए जानते हैं इस वाकये के सिलसिले में किसने क्या कहा। বলছে কি আমার পেশেন্ট যখন হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেছে কথা বলতে বলতে, আর তারপরে কোনো সেন্স নেই, এইখানে ওর হাতে একটু ইঞ্জুরি মতো আছে। আমি বললাম ঠিক আছে, এটা দেখার পর বললো এটা তো হার্ট ম্যানেজমেন্ট আছে, হার্টের ডাক্তার কাছে গেলে ভালো হবে, কারণ এখানে হার্টের ম্যানেজমেন্ট আমাদের হসপিটালে নেই। তো বলছে ঠিক আছে, তো একটা কাজ করুন, কোথায় নিয়ে যাবো? তো এখানে তো সামনে আনন্দ রয়েল এই দ্রুত হাই সেন্টার আছে, যেখানে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। তারপরে হঠাৎ করে পেশেন্ট উঠে বসে গেছে আর ঝামেলা স্টার্ট, मारपीट स्टार्ट कर दी सब। वो लोग ये नहीं पता कहाँ का है, ये वो लोग लोकल के ही है। वही रीजन कुछ नहीं है, वो लोग फुल प्लानिंग के साथ आया था, हमारे लिए ही आया था वो लोग। ठीक है, पूरा ट्रीट किया हुआ। तो आपने खाना में जनाया ये बात? हाँ, हॉस्पिटल में नहीं तो बोला कि हम लोग जनाए हैं, लेकिन पता नहीं अभी उनको ठीक है। तो आप मेरे साथ इस जगह पे इंजरी लगा था मैं कुमार सिंह। यहाँ पे हम इमरजेंसी में एज ए आर्मी हैं। বিয়া এরকম ছেলেকে ঘষাড়ে নিয়ে এলো, বলছে গেট খুল, আমাদের খুলতেই হবে, উপায় তো নাই। দিয়ে পরে ভিতরে গেল, মতিদাকে উঠাই দিলাম, ও ডাক্তার আনলে তো আমরা ওই বাইরে গেট লাগাই বসে আছি। তখন এধারে ডাক্তারের সঙ্গে কি হয়েছে সেটা জানি না, আমরা তো নিচে আছি। দিয়ে পরে ওইখান থেকে দেখলাম মারপিট যখন শুরু হয়ে গেছে, সুপারভাইজারকে ডাকলাম, ওয়াকেও বস করেন দিলে, ওয়াকেও বোধহয় মেরেছে। দিয়ে পরে ওইখানে পুরো মারপিট চলছে। আমরা তো এইখান থেকে লড়ি নাই, আমরা লড়ব কেন? আরও যদি আমাদেরকে এইখানে যদি ইয়া করে, তো তারপর নিচে গেল। नीचे जैसे मैनेजमेंट को आप लोग जनाए हैं? हैं आप लोगों ने मैनेजमेंट इसको जनाए हैं? आप लोग बोले हैं हाल করে তাদেরকে বলেছেন? হ্যাঁ, এই তো সুপারভাইজার আমার কাছেই ছিল। দিয়ে পরে ইয়া হলো গেটে মারামারি যখন হচ্ছে, আমি বলি দেখো ভাই মেরো না, আমরা বাইরের থেকে কাজ করতে এসেছি। বলছে যা 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 যা, ঠেলে ফেলান দিলে তো আমার হাতে খুব জোর লেগে গেল। আর ও একটা টুল ছুঁড়ে মারতে গেল, তখন টুলটা ধরে নিলে নিয়ে তা করতে করতে মানে পুলিশ এলো, তখন ওরা চলে গেল। ওরা 7-8 জন ছিল। আপনার নাম? আমার নাম দীননাথ মন্ডল। আপনি কাজ করেন? হ্যাঁ, কী কাজ করেন? গার্ডের কাজ করি ওই যে সামনে। ম্যানেজমেন্ট যারা সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, নানা রকম পদে আছে, তারা একবার আসবে না? তার স্টাফ আমার সঙ্গে ওনাদের প্রতিদিন যোগাযোগ নেই, কিন্তু ওনার সঙ্গে প্রতিদিন ফোনে হোক, দেখা হোক, এখানে হসপিটালে এসে হোক, তারা একটা যোগাযোগের আছে। ওনার ইচ্ছে হলো স্টাফেদের ওনারা যা খুশি করলেন তা তো বলে না, ম্যানেজমেন্টের নির্দেশেই ওনাদের কাজ করতে হয়, পছন্দ হোক আর নাই হোক ওদের কাজ করতে হয়। তারা একবার মানবিকভাবে এসে ওনাকে জানালো না তারা? আর বড় বড় কথা বলে এরা সমাজের বিভিন্ন পদে বসে আছে, একবার আসবে না তারা? এসে কথা বলবে না? পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলবে না তার স্টাফ? একবার বোঝা যাচ্ছে না যে বিষয়টা কী ব্যাপার, কী চাইছেন এনারা? আমার তো কথা হচ্ছে ইমিডিয়েট আসা উচিত, স্টাফেদের ভরসা দেওয়া উচিত। কার ভরসায় ওরা কাজ করছে তাদের ভরসা দেওয়া উচিত। এবং শুধু তাই নয়, হসপিটালের তরফ থেকে অন ডিউটিতে তারা ঝামেলায় পড়েছে, মার খেয়েছে, তাহলে ম্যানেজমেন্টের উচিত, হসপিটাল কর্তৃপক্ষের উচিত তাদেরও একটা ডায়েরি করা, থানায় যাওয়া, চাপ সৃষ্টি করা, যাতে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি হয়, যাতে এই ঘটনা রিপিট না হয়। এটা যদি প্রতিবাদ না হয় তাহলে এরকম মাঝে মাঝে ঘটবে, প্রায় ঘটবে এরকম। কারুর পছন্দ হলো চলো ওখানে মেরে আসি। আরে হসপিটাল যখন আছে তখন হচ্ছে ভুল ত্রুটি আছে, মৃত্যু আছে, সব কিছু আছে। কোন হসপিটাল? সিকিউরিটি গার্ডরা করে, এবার সব সময় পারে না, একটা সিচুয়েশান, রাত বা দিনের বেলা এরা, বললাম তো কম পয়সায় এরা যা করে অনেকে করে না। नहीं कुछ आया नहीं अभी तक किया, जो लोग मार खाया वो लोग को बातचीत किया नहीं, आया भी नहीं, फ़ोन में भी बात किया नहीं, आया नहीं। ये तो हमको देखना है, लेकिन मैनेजमेंट को तरफ से उसको हॉस्पिटल है, उसको संपत्ति है, उसको प्रॉपर्टी
उसको करना चाहिए, उसको स्टाफ है, उसको तो कंप्लेन करना चाहिए, उसको तो FIR करना चाहिए। तो कल जो कुछ होगा उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको भीतर में जो जिम्मेदारी लेना है उसको लेना है, मैनेजमेंट को लेना है, हमको तो नहीं है। लेकिन हम MLA कोशिश करेगा, हम भी पुलिस में जाएगा, चिट्ठी उठी देगा एवं दोषी को धरते হবে, এই দাবি আমরা করব। आसनसोल एकता मंच की जानिब से कल शाम इंजीनियर खुर्शीद गनी के रिहायशी मकाम पे सैयद अफरोज, डॉक्टर साबरा हिना और सैफुल इस्लाम को इस्तकबालिया दिया गया। याद हो कि कुछ दिन कबल सैयद अफरोज को TMC माइनॉरिटी सेल का सदर मुंतखब किया गया है और डॉक्टर साबरा हिना आसनसोल उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन है। इस मौके पर एक शेरी निशस्त का भी एहतमाम किया गया। नज़ीर अहमद यूसुफी, अंजुम रोमान और खालिद अदीब खास तौर से मौजूद। अपनी नौबियत का एक बहुत ही बामानी प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है असल में लिया गया था कि डॉक्टर साबरा हिना खातून और MMIC आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीर हासिन साहब ने जो 5 साल खिदमत आसनसोल कॉर्पोरेशन में जो एक बॉडी बनी उर्दू एकेडमी, तो जिसको एज ए सदर और एज सेक्रेटरी दोनों ने जो अंजाम दिया, ये बहुत इन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने ये काम को अंजाम दिया। अपनी लोकल ट्रेन चालू करने समेत 4 मांगों को लेकर DRM दफ्तर में आसनसोल होकर्स एकता समिति की जानिब से अजदास सौंपा गया। DRM की गैर मौजूदगी में अजदास इनके PA को सौंपा गया। तंजीम के सदर गोपाल लाल ने हमें जानकारी दी। क्या डेपुटेशन हम लोग का ये जो चर्चा के लिए आए हैं कि 2 दिन पहले हम लोग DRM साहब को एक ज्ञापन दिया था रेलवे होकर एकता समिति के माध्यम से। उनमें ये जानकारी DRM साहब को दिया गया था कि सर सभी ट्रेन तो मोटा मोटी एक्सप्रेस ट्रेन चल ही रही है, क्या उसमें कोरोना नहीं है? हम लोग चाहते हैं सर कि लोकल ट्रेन चालू किया जाए, जिसमें सैकड़ों फेरी वाले हॉकर्स हैं, मजदूर हैं, रिक्शा वाले, टोटो वाले, सबका जीविका बंद हो चुका है। तो पहला मुद्दा हम लोग का था कि लोकल ट्रेन चालू किया जाए, क्योंकि जो गरीब मजदूर फेरी वाला 100 रुपये MST कटा करके दुर्गापुर तक जाते थे, आज उनका 100-150 रुपया डेली लग रहा, बेचारा फोन भी नहीं करता, वो लोग रिटर्न इसी तरह से आ रहे हैं। ये पहला विनती हम लोग का है कि DRM साहब लोकल ट्रेन चालू किया जाए। दूसरा मुद्दा हम लोग का है कि हम लोग 40-50 साल से हमारे सीनियर्स होकर थे, 25 साल से हम खुद रेलवे के अंदर में नौकरी करते आ रहे थे। हम लोग ने नौकरी कभी बंद नहीं किया। हमारे ऊपर रेलवे प्रशासन का बहुत ज़्यादा जुल्म जाती हुई है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी बंद नहीं किया। ये हमारा जीविका है, हम लोग रोजी रोटी से चलाते हैं। ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, बेरोजगारी का समस्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है और संविधान हम लोग को ये हक दिया है कि हम लोग रोजी रोटी किसी भी तरह से कमा सकते हैं, सिर्फ चोरी डकैती नहीं करें। तो हम लोग अपना जीविका चलाने के लिए हम लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से हम लोग नौकरी का एक जीविका चुने थे, जो रेलवे के अंदर बाहर मिला करके हम लोग आसनसोल के डिविजनल में सिर्फ 3 से 5 हज़ार हॉकर्स है जो हम लोग जीविका चलाते थे। जब कुछ स्टेशन में ट्रेन चालू हुई है तो हॉकर्स जो पहले की तरह रोज चढ़े स्टेशन के अंदर काम करने के लिए, लेकिन RPF ने उन्हें पकड़ा। पकड़ने के बाद उनका जो पहले 10-50 रुपया फाइन होता था, वो अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनको 2700 रुपया फाइन किया। जब हमारा टीम किया है, जैसे अमन टर्जन शर्मा जो रेलवे होकर एकता समिति के भी जनरल सेक्रेटरी है, वो गए बात करने के लिए, तो उनसे ये कहा गया कि आप जाकर के DRM साहब से बात कीजिए, अगर आप स्टेशन के अंदर में चढ़िएगा तो हम लोग 144 नहीं लगा करके हम लोग 2700, 3000, 3600 इसी तरह का फाइन करेंगे, और ज़्यादा कुछ भी होता है तो हम लोग हाथ चार्ज करेंगे। आज किस लिए आए हैं? आज हम लोग आए हैं कि हॉकर्स का जो मुद्दा है, हम लोग स्टेशन के अंदर में काम तो कर ही रहे हैं सैकड़ों बरस, 50 साल से हम लोग स्टेशन के अंदर में नौकरी बंद नहीं करेंगे। हम लोग का जो रेलवे के तहत जो धारा लगता है 144, कृपया वही लगाया जाए। और दूसरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि RPF हम लोग के ऊपर कोई हाथ चार्ज ना करे, कानून को तोड़ करके कोई भी काम ना करे, बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग DRM साहब के पास आए। तो 21 बैनर तले आए हैं रेलवे होकर एकता समिति।
बिहार इलेक्शन के बाद सबकी नजरें बंगाल पर टिकेंगी, क्योंकि आइंदा साल असेंबली इंतखाब होने जा रहा है और इस इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी को मजबूत करने की गर्ज से मुख्तलिफ तंजीमों की कमेटी और जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी कड़ी के तौर पर सैयद अफरोज को पश्चिम बर्दवान तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल का सदर मुंतखब किया गया है। आज रानीगंज में तृणमूल माइनॉरिटी सेल ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सैयद अफरोज को इस्तकबालिया दिया गया है। इस मौके पे कंचन तिवारी, आलोक बोस, इंतखाब खान व दीगर खास तौर से मौजूद थे। माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बर्दवान जिला के छोटे से प्रोग्राम में बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी शामिल है, कार्यकर्ता भी शामिल है और हम सब ममता बनर्जी को प्यार करने वाले, ममता बनर्जी को हाथों को मजबूत करने वाले हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था हमारे बड़े भाई, हमारे दादा, जिनके साथ जिन्होंने मोदी कहा कि बहुत दिनों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो पहुंचता है। कंचन तिवारी साहब ने भी मेरा ताल्लुक, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, उनको भी मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। बहुत सारे प्रोग्रामों में, बहुत सारी लड़ाइयों में हम लोग एक साथ रहे। इसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर है वो भी मौजूद है, उनसे भी साथी मोहम्मद नामी भी मौजूद। অনেকদিন পর আমাদের মাননীয় ছেলে মানুষকে সঠিক দিশা নিয়ে যাবে এটা আশা করি। বহু খারাপ অবস্থায় গেছি, তবু দলটা মামাটি মানুষের করে গেছে। মাননীয়কে উঠে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করতে হবে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, কৃষকদের স্বার্থে উন্নয়ন এরা করে না। এখনো এরা सबको सुमति हे भगवान राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति हे भगवान। कविता लेखा ছিল आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.